नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए हेमंत गुप्ता एंड आज मैं आप लोगों के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट बेनेवोलेंट फंड के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बेनेवोलेंट फंड बनाने का पर्पस सिर्फ यही था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और देयर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर अगर उनको किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो इंस्टीट्यूट की तरफ से ये फाइनेंशियल असिस्टेंस उन लोगों को प्रोवाइड की जा सके। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बेनेवोलेंट फंड चार तरह से मेंबर्स और उनके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स की सहायता करता है। नंबर एक, बाय वे ऑफ एक्सग्रेशिया पेमेंट। अगर किसी मेंबर की मृत्यु 55 साल से पहले हो जाती है अननेचुरल कारण की वजह से, तो उस केस में ये फैमिली मेंबर्स को मदद करता है। नंबर दो, इन केस ऑफ ए मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी मेंबर और family member of that member, then also the institute provides financial assistance through this fund. Further, institute इस फंड के द्वारा मंथली पेमेंट्स भी प्रोवाइड करा सकता है डिपेंडेंट ऑफ फैमिली मेंबर्स को, जो कि 15,000 से 25,000 तक वेरी करती हैं, पर उसमें कंडीशन ये है कि कंबाइंड फैमिली इनकम ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ दैट मेंबर शुड नॉट बी मोर देन 25,000। फोर्थ वे ऑफ हेल्प इज, एज यू ऑल नो, कोरोना की वजह से आजकल हर कोई परेशान है। इन एडिशन टू हेल्पिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय वे ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, a special category for corona has been incorporated. So in case you as a chartered accountant or your any dependent family member is facing any financial issues in dealing with corona, then also institute will help you in this regard. So quantum of help is lower of 1.5 lakh or actual expenses you will be given. So now question arises how to apply it. There is a website. The link to that website I will give in description box. You need to go in that website, select appropriate category, fill out your particulars. There are four part in every application. Part A will be the detail of member, part B will be the detail of applicant or dependent family member, part C is your bank account detail, and part D is basically a recommendation which is to be given by a member of institute, and I'll tell you who are the member authorized to give those recommendation. So I'll come to it later on. So now the question would arise, who is a dependent family member? So dependent family member is a non-working spouse, son, daughter. Maximum age for son is 21 years. Maximum age for daughter is 25 years, provided she should not be married. Dependent parents of that individual member. For corona purpose, a special relaxation has been given with respect to age of the parent and working of the parent. So the age limit of 60 is no more applicable with respect to corona claim, and parents may be a working or earning parents, but there is some income criteria which is affixed. So I'll come to that income criteria as well in a bit. However, if the family or member receives any insurance claim from any insurance company, then institute will not pay any amount to the family or the member. However, if some claim amount is reduced or not paid by the insurance company, whether by a rejection or some other reason, then in that case institute, subject to the limit already discussed, will pay that amount to member or dependent family member. अब इस पे आते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जिनकी रिकमेंडेशन हमें चाहिए होगी इंस्टीट्यूट से फाइनेंशियल असिस्टेंस की फैसिलिटी अवेल करने के लिए. सो दोज पीपल आर प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट, रीजनल काउंसिल मेंबर, सेंट्रल काउंसिल मेंबर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी ऑफ रीजनल काउंसिल और एनी ब्रांच ऑफ द इंस्टीट्यूट. सो आप इनमें से किसी भी को अप्रोच कर सकते हैं और उनसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हैं. लेकिन अगर आप ये देखा जाए ऑनलाइन जो भी इंस्टीट्यूट ने फैसिलिटी बना दी है, तो ये रिकमेंडेशन की सिलेक्शन कि आप किससे रिकमेंडेशन मांग रहे हैं वो भी आपको उसी में मेंशन करनी है. तो प्रॉब्ली बाय वे ऑफ इंस्टीट्यूट इंटरनल सिस्टम ओनली, that request will go to that person and that person will either approve or reject the that request for recommendation. और मेडिकल ट्रीटमेंट अगर देखा जाए काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो इंस्टीट्यूट ने कवर की हैं इन एडिशन टू कोरोना ऑल्सो. सो फॉर द सेक ऑफ ब्रीविटी आई एम नॉट डिस्कसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट कवर्ड बाय द इंस्टीट्यूट, सो दैट कैन बी रेफर्ड ऑन इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट. सो नाउ कमिंग टू द डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड अलॉन्ग विद दिस एप्लीकेशन. एक तो आपको अपनी 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है साथ में. नंबर 2, आपको आधार और पैन देना है एप्लीकेंट का. नंबर 3, आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है. और उसके भी पहले ये इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में डिटेल देनी है, हॉस्पिटल का बिल देना है, डायग्नोसिस की डिटेल देनी है. अगर हॉस्पिटल ने आपको कोई एस्टिमेट दिया है मेडिकल ट्रीटमेंट का तो वो भी साथ लगाना है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ रिकमेंडेशन हैज टू बी अटैच्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन एज वेल. अब इसके पहले मैं इस वीडियो को खत्म करूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के माइंड में भी आ रहा हो, क्या मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बेनेवोलेंट फंड का मेंबर होना ज़रूरी है या नहीं है.
तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बेनेवोलेंट फंड का मेंबर होना ज़रूरी नहीं है। दो पर्सनली आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू बी बिकम अ मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बेनेवोलेंट फंड। बट अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बेनेवोलेंट फंड के मेंबर नहीं भी हैं और आपको किसी भी तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप ये सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हुए वो फाइनेंशियल असिस्टेंस इंस्टीट्यूट से मांग सकते हैं और इंस्टीट्यूट पूरी कोशिश करेगा कि आपको वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेंबर होना ज़रूरी है। बिफोर कंक्लूडिंग, आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू to contribute as much as possible to Chartered Accountant Benevolent Fund so that in times like these हम में से कुछ members जिनको भी ऐसी फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो उनकी मदद की जा सके। सो विद दीज वर्ड्स मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ये वीडियो देखने के लिए। दिस इज सी हेमंत गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।